Hello, everybody, and welcome to the sixth lecture of computer applications for class 9th and class 10th ICSE. Before attending to this lecture, ensure that you have watched all the previous lectures of this course. There is a separate playlist named Computer Applications in my playlist section where you will find all the lectures of computer applications in proper sequence. In this lecture, we will cover three types of operators in Java: assignment operator, relational operators, and logical operators. So in the previous lecture, I have covered about unary and binary operators, where we discussed about increment and decrement operators of both types, postfix and prefix. We had also discussed a good amount of questions of previous year's ICSE. So even more questions we will cover in the coming classes, in the coming lectures. So ensure that you have watched all the previous lectures. That is mandatory. Now, without wasting any time, let us start the topic assignment operator. If you see, I have written relational operators, there is an S. Logical operators, there is an S. But I have written assignment operator, there is no S. That means it is a singular operator. It means there is only one assignment operator. There is just one assignment operator. But if I talk about relational operators, there are more than one relational operators. If I talk about logical operators, there are more than one logical operators. We will learn about all the logical operators, all the relational operators, as well as the assignment operator, the only assignment operator in Java. Let us start with assignment operator. So start taking down the notes as well as start understanding whatever I explain. Now, when I say assignment operator, the name itself has its meaning. Assignment का मतलब assign करना, कोई value किसी variable में assign करना. Suppose I write int a is equal to 5 semicolon. Okay. In this statement, 5 is a constant value. We call it literal. A is the variable, we call it identifier. I have a video already uploaded previously where I have discussed about identifier and literals in detail. So 5 is the literal which is being assigned to a variable named A. A is the variable, the identifier. 5 is getting stored in A. In other words, 5 is being assigned to A. Who is assigning? Which operator is assigning this value? This equal to sign. So if you see, this is actually not an equal to sign in Java. जावा में इसे हम इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं बोलते हैं, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. मैथ्स में ये इक्वल टू साइन होता है, जावा में नहीं होता है. आई विल कम टू दैट ऑपरेटर विच इज इक्वल टू इन जावा. इक्वल टू क्या है जावा में, वो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इसे हम इक्वल टू साइन नहीं बोलते हैं. दिस इज नॉट एन इक्वालिटी ऑपरेटर इन जावा. This is assignment operator in Java. Means this symbol is assigning the value of 5 to A. This is as simple as this. So एक ही हमारे पास assignment operator है Java का, वो है ये equal to sign. ये एक assignment operator है. Okay, so let us write down the assignment operator bracket में लिखो single equal to sign is used to assign a value, bracket में लिखो literal, to a variable, bracket में लिखो identifier. Write an example. Example, int a is equal to 6. In the above statement, the value 6 is assigned to a variable named A using the assignment operator.
कितना सिंपल है, ठीक है। 6 को हमने ए में असाइन किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, ये एकमात्र असाइनमेंट ऑपरेटर, बस असाइनमेंट ऑपरेटर का यहां पर किस्सा खत्म हुआ। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं, इनका नाम से ही हमें क्लियर पता चल रहा है क्या काम है इनका। रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशन बताते हैं, दो एक्सप्रेशंस के बीच रिलेशन बताते हैं। एक और बात यहां गौर कर लो, असाइनमेंट ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर होता है। इफ यू कैन रिकॉल व्हाट डू वी मीन बाय बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स व्हिच ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑन टू ऑपरेंड्स। सिंगल ऑपरेटर पे ऑपरेट करने वाले होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स व्हिच ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स। जी हाँ, यहाँ पे ये जो इक्वल टू साइन है, ये दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक ए पर और एक 6 पर। A and 6 are the two operands on which this operator is operating. Hence, assignment operator is an example of a binary operator. कोई डाउट नहीं है, कितना सिंपल चीज है। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। Relational operator, next type of operator. Now we have several relational operators, so I'm writing S, operators. In the previous case, I had written operator, assignment operator, only one operator was there. Now relational operators, as the name suggests, these operators tell us the relationship between two expressions. The relational operators tell us about the relationship between two operands बोल सकते हो और expressions बोल सकते हो, और expressions का मतलब ही operands है in this case. Example, कौन कौन से ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं? दिस सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, इसका फुल नेम भी लिखते जाओ, ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन का सिंबल, लेस देन, देन यू हैव इक्वल टू का सिंबल. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू साइन जो हमने यहां पे यूज किया था, आई टोल्ड यू दिस वाज नॉट इक्वल टू, वो असाइनमेंट ऑपरेटर था. इक्वल टू क्या होता है, कैसे लिखते हैं इक्वल टू को जावा में? ये डबल इक्वल टू का साइन देते हैं, दो बार इक्वल टू लिखेंगे. मैथ्स में हमारा ऐसा कोई भी साइन नहीं है. क्या कभी मैथ्स में दो इक्वल टू यूज किए हो जिंदगी में? कभी नहीं. सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर इज नॉट देयर इन मैथ्स, इन मैथमेटिक्स, बट इन जावा इट इज देयर. दिस ऑपरेटर इज इक्वालिटी ऑपरेटर. इसे ही हम इक्वल टू साइन बोलते हैं जावा में. दिस इज द इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वल टू. इस ऑपरेटर का नाम है इक्वालिटी ऑपरेटर. इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर. इसके अलावा लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसके अलावा ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड एक और है नॉट इक्वल टू. देखो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने दिया, इसे नॉट पढ़ा जाता है, नॉट, नॉट इक्वल टू. और एक यहां पे एक सिंगल इक्वल टू देते हैं. ये सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है. जब नॉट के साथ इसे लिख रहे हैं तो एक ही बार इक्वल टू देंगे, और ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, नॉट एंड इक्वालिटी ऑपरेटर टुगेदर. बी केयरफुल अगेन, यहां सिंगल इक्वल टू है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. नॉट के साथ मैंने लिखा तो एक ही बार लिखेंगे. एंड कंपाइलर अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज नॉट एंड देन एन इक्वालिटी ऑपरेटर. नॉट इक्वल टू इसे बोलते हैं. अब इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा. नॉट इक्वल टू, अब इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा. देखो मैंने कितने सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का एग्जांपल लिखा, 1 2 3 4 5 6. So there are 6 types of relational operators.
लेट अस सी ईच ऑफ दीज ऑपरेटर्स ना। क्यों रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं? क्योंकि ये मुझे रिलेशन बताता है। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो, अगर मैं लिखता हूं इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 7, और इसके बाद मैंने लिखा इफ, मैं थोड़ा स्टेटमेंट को ऊपर करता हूं, स्पेस बना लेता हूं। इसके बाद अगर मैं लिखता हूं इफ, आगे हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, और इसके अंदर में कुछ कोड्स हैं जिनके बाद में मैं जिनके बारे में डिस्कस करूंगा। अब बस इतना समझो, ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन साइन, ये मैंने दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेट किया। एक ऑपरेंड है ए इज वन ऑफ द ऑपरेंड्स, एंड बी इज द अदर ऑपरेंड। ए और बी पर ये ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर ऑपरेट किया। ग्रेटर देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो इसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। क्यों? इस केस में क्या होगा, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 7 है, तो 5 ग्रेटर देन 7, ये तो फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है, इनफैक्ट जिसे हम कहते हैं रिटर्न, रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ दो ही वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है, वो है या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर मैं बोलूं 2 + 3 क्या रिटर्न करेगा, तुम बोलोगे सर 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 + 3 5 होता है इसका आंसर। तो ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसने जब 2 और 3 पर ऑपरेट किया तो एक आंसर दिया, रिटर्न किया 5, तो इसने ये रिटर्न किया। तो इसमें जैसे हम, अगर मैं 9 + 2 करूं तो रिटर्न होगा 11। यानी दो इंटीजर्स को अगर मैं एरिथमेटिक ऑपरेटर से ऑपरेट करूं तो मुझे एक इंटीजर आउटपुट आ सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है। इस बार एक बार 5 आया था, 11 आया, दूसरी बार जो दो अलग अलग नंबर्स होंगे अलग अलग आउटपुट आएगा। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स में कैसे भी ऑपरेंड्स क्यों ना हो, आउटपुट दोनों में से कोई एक आएगा। आउटपुट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इस एग्जांपल में हमारा आउटपुट फॉल्स था। अगर मैं इसे ऐसे लिखता इफ बी ग्रेटर देन ए, तो आउटपुट ट्रू आ जाता। या फिर मैं लिखता ए लेस देन बी, तो भी आंसर ट्रू आता। ये सभी केसेस में ऐसा हो सकता है, इसलिए लेस देन भी हमारा एक रिलेशन ऑपरेटर है। इक्वल टू पे आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने लेस देन और ग्रेटर देन समझा दिया इन एग्जांपल्स में से। अब मैं इक्वल टू में आता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट इन दिस प्लेस। सपोज हमारे पास है इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज ऑल्सो इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों 5 है, a भी 5 है, b भी 5 है। अगर मैं लिखता हूं इफ a इक्वल टू b, इसके बाद कुछ कोड्स हैं इफ के अंदर, तो ये इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें मैंने इक्वालिटी ऑपरेटर यूज किया है। दिस इज योर इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वल टू साइन। ये कंपेयर करेगा कि क्या a और b सेम है। अगर सेम है तो ट्रू बोलेगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा, सेम नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहां तो हमारा ट्रू है, क्योंकि a का वैल्यू भी 5 है, b का वैल्यू भी हमने 5 असाइन किया है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। और यहां हमने कंपेयर किया, रिलेशन बताया, a और b का क्या रिश्ता है, दोनों इक्वल है। इस केस में a और b का क्या रिश्ता है, a या तो b से बड़ा है या छोटा है, रिलेशन बता रहा है। तो इसमें देखो यहां पर भी आंसर ट्रू आया। और अगर हम लिखते हैं इंट a5 इंट b7 इफ a इक्वल टू b, तो ये तो फॉल्स हो जाता, क्योंकि 5 और 7 तो इक्वल नहीं है, a 5 है, b 7 है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई और आंसर पॉसिबल नहीं है, कोई और वैल्यू, कोई और रिजल्ट जो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न करे पॉसिबल नहीं है। या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो हमारा क्लियर हो गया, इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर भी क्लियर हो गया।
एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं ये जो सिंगल इक्वल टू साइन है और डबल इक्वल टू साइन है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बहुत गहरा डिफरेंस है। सबसे पहली चीज तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और दूसरी चीज ये ऑपरेटर का कैसे काम होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका नाम है इक्वालिटी ऑपरेटर, विच इज अ टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। अब दोनों का हम एग्जाम्पल से इसका एक्चुअल वर्किंग समझते हैं। इफ आई राइट ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या? और अगर मैं लिखता हूं ए इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब? दोनों के साइड्स में मैंने ए बी लिखा हुआ है, लेकिन ऑपरेटर अलग अलग है। इसमें मैंने सिंगल इक्वल टू का यूज किया, इसमें मैंने डबल इक्वल टू का यूज किया। क्या दोनों का मीनिंग सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। देयर इज अ वास्ट एंड अ बिग डिफरेंस। व्हेन आई से ए इज इक्वल टू बी, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें क्या हो रहा है? बी का जो वैल्यू है वो ए में असाइन हो जा रहा है। बी का वैल्यू ए में असाइंड हो जाएगा। इसका कोई आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आएगा। द वैल्यू रिटर्न विल नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स। इसमें तो कोई रिटर्न होता ही नहीं है, कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं होगा। सिंपली ए का वैल्यू ए में बी का वैल्यू चला जाएगा, जो बी का वैल्यू होगा वो ए में असाइन हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं इंट बी इज इक्वल टू 2, इंट ए इज इक्वल टू 5, फिर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू बी, तो कैसे कंपाइलर कंपाइल करेगा? ध्यान से देखो, स्टेप वाइज ड्राई रन को देखो। सबसे पहले इस कोड में आया इंट बी इज इक्वल टू 2, बी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया मेमोरी में जिसका वैल्यू है 2। दूसरे कोड में आया इंट ए इज इक्वल टू 5, ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका वैल्यू है 5। और अगले स्टेप में आया ए इज इक्वल टू बी। कंपाइलर जानता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाइलर जानता है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब बी का वैल्यू ए में चला जाएगा। तो बी का क्या वैल्यू है? बी का देखो 2 है ना, बी का वैल्यू, तो 2 विल गो इन ए नाउ। ए का पुराना वैल्यू डिलीट हो जाएगा। द न्यू वैल्यू ऑफ ए विल बिकम 2 बिकॉज बीज वैल्यू नाउ विल गो टू ए। ये ऑपरेट हुआ। अभी अगर मैं प्रिंट करूं ए को, अगर मैं ए को प्रिंट करना चाहता हूं कमांड से, तो ए का कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? ए का वैल्यू 2 प्रिंट होगा, क्योंकि ए का वैल्यू अभी 2 है, 2 है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ने किया, असाइन किया, कोई चीज को कंपेयर नहीं किया, रिलेशन नहीं बताया, ए और बी के बीच का क्या रिलेशन है वो नहीं बताया, सिंपली बी का वैल्यू को ए में असाइन किया। ये सिंगल इक्वल टू साइन करता है। डबल इक्वल टू क्या करेगा जी? डबल इक्वल टू क्या करेगा? डबल इक्वल टू इज नॉट असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज इक्वालिटी ऑपरेटर, अ रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिश्ता बताएगा ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है। बस सेम है, इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर मैं लिखता हूं यही कोड को देखो, सेम कोड, इंट बी इज इक्वल टू 2, इंट ए इज इक्वल टू 5, और अगर मैं लिखता हूं इफ ए इज इक्वल टू बी, इसमें बी का वैल्यू ए में असाइन नहीं हो रहा है, बी का वैल्यू तो 2 है, ए का वैल्यू 5 है। और जब कंपाइलर इस कोड में आया तो वो बस कंपेयर किया, क्या ए बी के इक्वल है? देखा नहीं, a is 5, b is 2, they are not equal. So simply मेमोरी में इसका जो रिजल्ट जनरेट होगा वो होगा फॉल्स। और इसके बाद क्या होगा? इफ का, इफ स्टेटमेंट, वो सब जब मैं इफ पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। इफ एल्स मैं अलग से पढ़ाऊंगा, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इफ। एज ऑफ नाउ यू ओनली फोकस ऑन द रिजल्ट डेवलप्ड बाय दिस इक्वालिटी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इस पर बस फोकस करो। इफ में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इफ का डिस्कशन। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट वो या तो ट्रू या फॉल्स होता है। अब तुम मुझे बताओ ट्रू या फॉल्स कौन से डेटा टाइप में हम असाइन करते हैं? डेटा टाइप तुम लोग सोचो, यू नो दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, बट आई वांट टू मेक इट क्वाइट इंटरएक्टिव इन द वे कि मैं क्वेश्चन करूं तो तुम लोग सोचो, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने बोला ट्रू एंड फॉल्स, जो इसका आउटपुट आता है, तो ये किस टाइप का डेटा टाइप में हम असाइन करते हैं? कौन सा डेटा टाइप? हमारे पास तो कितने सारे डेटा टाइप है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, कौन सा? कैर है, कौन सा? यस, बुलियन। बुलियन में तुम लोग में बहुत लोग सोच लिए होंगे,
करेक्ट आंसर। बुलियन, बुलियन डेटा टाइप मैंने बोला था, इसमें इसका जो वैल्यूज होता है वो आइदर ट्रू या फॉल्स होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उसका जो आउटपुट होता है, जो वो रिटर्न करता है, वो बुलियन वैल्यूज को रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यूज को वो रिटर्न करता है, मतलब ट्रू या फॉल्स को वो रिटर्न करता है। ये चीज हो गई। तो इक्वालिटी ऑपरेटर हमने डिस्कस किया। लेस देन इक्वल टू पे आता है। लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है और ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर नॉट इक्वल टू पे भी आएंगे। अगर मेरे पास है इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल्स टू 5, और मैं लिखता हूं इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पे सब ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, तो ये दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा। तो क्या a ग्रेटर देन b है? नो। a का वैल्यू भी 5 है, b का वैल्यू भी 5 है, सो a इज नॉट ग्रेटर देन b, ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन इक्वल टू साइन तो है, क्या a b के इक्वल है? हाँ है, हाँ है, दो बोथ आर इक्वल। यहां पे भी देखो सिंगल इक्वल टू साइन हमने यूज किया, इट इज नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सिंगल इक्वल टू साइन कंपाइलर को पता है कि अगर वो ग्रेटर देन के साथ यूज हुआ है या लेस देन के साथ यूज हुआ है या नॉट के साथ यूज हुआ है, वो इक्वालिटी ऑपरेटर ही है। तो वो कंपेयर ही कर रहा है यहाँ पे कि अगर ग्रेटर देन होगा तो भी ट्रू, इक्वल टू साइन होगा, इक्वल इक्वल होगा तो भी ट्रू। तो यहाँ पे इक्वल है एंड बी, तो इसका फाइनल आंसर ट्रू होगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं इंट a इज 7, इंट b इज 4, इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू b, क्या इसका आंसर ट्रू या फॉल्स क्या होगा? इसका आंसर भी ट्रू होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b तो ट्रू है, a इज 7, b इज 4, so 7 इज ग्रेटर देन 4। इक्वल टू साइन वाला फॉल्स है, लेकिन कोई एक तो ट्रू है ग्रेटर देन, तो वो फाइनल आंसर ट्रू होता है। यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या तो ग्रेटर हो, क्या लिखा है देखो, या तो ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो, या तो लेस देन हो और इक्वल टू हो। सिमिलरली यहाँ पे लेस देन भी यूज कर सकते हैं, एक ही चीज है। इस कोटेशन में मैं अगर लिख देता हूं इफ b इज लेस देन इक्वल टू 7, तो ये ट्रू है, क्योंकि b तो 4 है और 4 7 से कम है। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं इफ b लेस देन इक्वल टू 4, तो भी ये ट्रू है, क्योंकि b लेस देन 4 तो फॉल्स है, क्योंकि b मतलब 4 इज नॉट लेस देन 4, बट b इज इक्वल टू 4, b का वैल्यू भी 4 है, तो ये ट्रू है। कोई एक तो ट्रू है, कोई एक ट्रू हो जाने से लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में वो आंसर ट्रू ही आता है, ओवरऑल आंसर। ये हो गया हमारा। अब नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब है वो कंपेयर करेगा कि इक्वल नहीं, इक्वल तो नहीं है। अगर मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 5, और मैं लिखता हूं इफ a नॉट इक्वल टू b, इसका आंसर क्या होगा? यहां पे बोल रहा है a इज नॉट इक्वल टू b, क्या ये आंसर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? a इज नॉट इक्वल टू b बिल्कुल गलत है, क्योंकि a इज इक्वल टू b, एक्चुअली देखें तो a और b दोनों 5 है, तो a इज इक्वल टू b होना चाहिए। तो a इज नॉट इक्वल टू b लिखा हुआ है, मींस ये स्टेटमेंट का आउटपुट फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है नॉट इक्वल टू का आउटपुट कैसी इवैल्यूएशन हो रही है? सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 7, इंट b इज इक्वल टू 4, इफ a नॉट इक्वल टू b, बिल्कुल ये ट्रू होगा, क्योंकि a 7 है, b 4 है, तो 7 इज नॉट इक्वल टू b एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो तुम लोगों ने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जितने भी सारे हैं, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ऑल ऑफ दीज 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स, दे गेव देयर आउटपुट आइदर एज ट्रू और फॉल्स। Now, this true and false is stored in the computer's memory and then an appropriate action is taken after it. वो कोडिंग हम लोग जब सीखेंगे कि क्या होगा इफ के, ये ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा भाई, वो हम जब इफ एल्स करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज तो हमारी हो गई, रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अ वेरी फेमस आईसीएसई क्वेश्चन that has always come a number of times is this: what is the difference between, very common question in school exams also,
what is the difference between सिंगल इक्वल टू वाला साइन एंड डबल इक्वल टू वाला साइन? इसे हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ. देखो, ये जो सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर which is used to assign a constant value, जिसे हम लिटरल कहते हैं, लिटरल, टू अ वेरिएबल या फिर टू एन आइडेंटिफायर, वेरिएबल एंड इन ब्रैकेट यू राइट डाउन आइडेंटिफायर. एग्जाम्पल, int a equals to b. यहां लिखेंगे here the value stored in b gets assigned to a. a में असाइन हो गया जो भी वैल्यू b में था. दूसरे लाइन पे लिखेंगे ये डबल इक्वल टू साइन ऑपरेटर इज इक्वालिटी ऑपरेटर, ब्रैकेट में लिखो अ टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर. ये वर्ड लिखना जरूरी है, रिलेशनल ऑपरेटर. भले इक्वालिटी ऑपरेटर ना लिखो, you can also write that this double equal to operator is relational operator. That is okay. But relational operator word रहना चाहिए आंसर में. A type of relational operator, that is a very important word the teachers will look for in your answer. Okay, ये word relational operator और ये assignment operator. So this operator is a type of relational operator which compares the values of two operands और expressions. Expressions का मतलब ही operands है. Operands or expressions. Example, if a equal to b, here the values of a and b are compared whether they are equal or not. They are equal or not. कितना easy question है, ICSE question है, and it has been asked numerous times. Clear? Now we will move to the last type of operator for today, which is logical operator. This is not the last operator for today's lecture. This is the last operator. Logical operators. बहुत ध्यान से सुनना, समझने का कोशिश करो. Logical operators are used to join more than one relational expression. इसका क्या मतलब है? Relational expressions को join करने में use होता है. These operators, I will explain it. First, write down the definition. These operators are used to join more than one relational expression. जैसे इसका यहां पे हमारे पास जावा में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. एक है ये एंड, 2 बार हम एम्परसैंड लिखते हैं, 2 बार, नॉट 1, और इसे हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर. इसका नाम है एंड ऑपरेटर. क्या इसका वर्किंग होता है, कैसे करता है काम, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल से. दूसरा, ये 2 पैरेलल लाइंस, ये की है हमारे कीबोर्ड में, यू कैन सी. मैं टाइप कर रहा हूं, देखो ये वाला की हमारे कीबोर्ड में, दिस नॉट एल, दिस नॉट एल. अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे एंटर की, कीबोर्ड के जो एंटर की है, एंटर की के ऊपर में एक की है और उस की में एक बैक स्लैश है और उसके ऊपर इस तरह का हमारा सिंबल दिया हुआ है बैक स्लैश के साथ. तुम ये जो की है, इस की को शिफ्ट के साथ
प्रेस करो, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो तुम्हें ये सिंगल लाइंस इस तरह का दिखेगा। इस की को तुम लोग हर कोई ट्राई करना, एमएस वर्ड में भी कर सकते हो, देखना आएगा। सो यू हैव टू प्रेस इट 2 times. So this is read as OR operator. और एक होता है सिर्फ सिंगल नॉट, इसे बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन नॉट इक्वल टू एंड नॉट। नॉट अगर सिंपली नॉट बोल रहा हूं, दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, और नॉट इक्वल टू इज रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसका भाई यूज क्या है, देखो यहाँ पे क्लियरली क्या कह दिया है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू ज्वाइन। क्या ज्वाइन करेंगे? मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशंस। रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करेंगे। जैसे मैंने एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा a ग्रेटर देन b, और दूसरा एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा c ग्रेटर देन d। ये दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस है, इनको मैं ज्वाइन करूंगा। कैसे? एक बीच में मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकता हूं, a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d। ये कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ जिसमें हमारे पास दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस है और उसको मैंने कनेक्ट किया एंड से। इसका एक्चुअल वर्किंग मैं समझाता हूं एग्जांपल से, तुम्हें समझ में आएगा। एक्चुअल वर्किंग में एग्जांपल से समझाता हूं, देखो। सपोज यू हैव इंट a इक्वल्स टू 7, int b equals to 2, int c equals to 4, int d equals to 5। ठीक है, और मैं लिखता हूं इफ, और उसके अंदर फिर से मैं एक ब्रैकेट दिया और उस ब्रैकेट में लिखा a ग्रेटर देन b एंड, ये एंड ऑपरेटर है, दो बार हम एम्परसैंड लिखते हैं, c ग्रेटर देन d, और फिर ब्रैकेट क्लोज किया और फिर से ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट्स को देखो, वी हैव ओनली राउंड ब्रेसेस टू कीप एक्सप्रेशंस विद इन अनदर एक्सप्रेशन। ये मैंने पहले भी एक बार बोला था, सिर्फ राउंड ब्रेसेस का यूज होता है। तो a ग्रेटर देन b एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया हमने। c ग्रेटर देन d भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया। अब इन दोनों का इंडिविजुअल आंसर ट्रू या फॉल्स में आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है वो ट्रू या फॉल्स होगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखें, a ग्रेटर देन b, a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 2 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 2, तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू। अगर हम इसको देखें, c ग्रेटर देन d, c का वैल्यू 4 है, d का वैल्यू 5 है, तो 4 इज नॉट एक्चुअली ग्रेटर देन 5, सो दिस इज फॉल्स। ओवरऑल क्या ये एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू या फॉल्स क्या होगा? अगर हमने बीच में एंड लगाया हुआ है, एंड ऑपरेटर, एंड लगाया हुआ है, एंड मतलब इसको भी और उसको भी, एंड दोनों को ट्रू होना है। अगर दोनों ही ट्रू हो, दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हो, तभी इसका ओवरऑल आउटपुट ट्रू आएगा। कोई भी अगर एक फॉल्स हो गया तो ओवरऑल आउटपुट इसका फॉल्स आएगा। यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स भी जो रिटर्न करते हैं वो आइदर ट्रू या फॉल्स को ही रिटर्न करते हैं। बिल्कुल रिलेशनल ऑपरेटर्स के तरह ही लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमारा वर्किंग देख लो कैसे वर्क करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के आइदर साइड में जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस है उन पर डिपेंड करता है। अगर एंड लॉजिकल ऑपरेटर से हमने इसे कनेक्ट किया है तो उसके दोनों साइड्स के रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ट्रू होना चाहिए। इस एग्जांपल में एक ट्रू था, ए ग्रेटर देन बी ट्रू था, दूसरा वाला फॉल्स था, इसलिए ओवरऑल जो आउटपुट आया वो फॉल्स आया। नाउ लेट अस डू द सेम थिंग विथ और ऑपरेटर। बीच में एंड के जगह मैं और लगा देता हूं, तो मैं इसी को एडिट करके कर रहा हूं। आई हैव टू जस्ट चेंज द ऑपरेटर इन द मिडिल। देखो मैंने यहां पे और लगा दिया, और लगा दिया। और का क्या मतलब है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ओवरऑल आंसर ट्रू हो जाता है। ए ग्रेटर देन बी तो ट्रू है और सी ग्रेटर देन बी फॉल्स है, और बीच में हमने और लगाया है, मतलब कि या तो ये ट्रू हो या तो वो ट्रू हो। कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए
तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है। अगर दोनों फॉल्स हो तो ही और ऑपरेटर का आउटपुट फॉल्स आता है। अगर ये भी फॉल्स होता वो भी फॉल्स होता, दोनों अगर फॉल्स होता तो ओवरऑल फॉल्स होता। लेकिन एंड में दोनों को ट्रू होना है, दोनों ट्रू है तभी ओवरऑल ट्रू होगा, और दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा ही। ये बात हो गई। इस पर जब हम लोग और इफ एल्स का करेंगे तो यार क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो जा रहा है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एडिट कर दूं इसको, बी लेस देन 7, बी लेस देन ए, और तो अभी भी ये ट्रू है बिकॉज 2 इज लेस देन ए, तो अभी भी ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बी इक्वल टू ए, अब इसका आंसर क्या है? बी इक्वल टू ए क्या ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। कंपेयर किया, इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर है, चेक किया क्या बी और ए सेम है? नहीं, 2 इज नॉट इक्वल टू 7, ये फॉल्स है, और इधर सी ग्रेटर देन डी भी फॉल्स है, तो ओवरऑल जो आउटपुट आएगा इसका फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब कि फॉल्स तभी आएगा और ऑपरेटर में जब दोनों ही आइदर एक्सप्रेशंस फॉल्स हो, ये चीज है। तो एंड और हमने काफी सारे एग्जाम्पल से समझा। नॉट क्या है अब देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं इंट a इक्वल्स टू 7, इंट b इक्वल्स टू 2, और मैं लिखता हूं इफ a इक्वल टू b, समझो अभी मैं नॉट का यूज बिना करके पहले बता रहा हूं, फिर नॉट यूज करूंगा तुम्हारे लिए समझने के लिए इजी होगा। ध्यान से देखो, a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 2 है, और बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू b, क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ये फॉल्स है, because a is definitely not equal to b, because 7 is not equal to b, this is false। लेकिन अगर मैं यहां not आगे लगा देता हूं, if not लगा दिया, if not a इक्वल टू b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, if not a इक्वल टू b को, if not a इक्वल टू b, मतलब इक्वल टू b का जो मीनिंग है वो अगर फॉल्स है तो ओवरऑल आंसर ट्रू आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो ओवरऑल आंसर उसको ये नॉट ऑपरेटर ट्रू कर देगा, मतलब उल्टा आंसर देता है। नॉट क्या करता है? रिवर्स कर देता है। a इक्वल टू बी का तो फॉल्स है, लेकिन मैंने नॉट लगा दिया है आगे, तो इसकी वजह से इसका ओवरऑल आंसर ट्रू हो जाएगा। यानी किसी भी रिलेशनल एक्सप्रेशन के पहले अगर मैं नॉट लगा दूं तो उस रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो आंसर होता है उसका ऑपोजिट वैल्यू रिटर्न होता है। अगर मैं लिखता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, इंट m इज इक्वल टू 2, इंट n इज इक्वल टू 5, इफ m ग्रेटर देन n, और इसके आगे मैं एक नॉट लगा दिया अभी, तो समझो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं m ग्रेटर देन n, सिर्फ m ग्रेटर देन n को देखो, m ग्रेटर देन n, दिस इज द फॉल्स, लेकिन उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो ओवरऑल इस फॉल्स को भी वो उल्टा करके ट्रू आंसर को देगा। और इसी जगह अगर मैं ऐसे लिखता, इफ नॉट m लेस देन n, तो m लेस देन n तो हमारा ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन 5, नॉट लगा दिया गया है तो ओवरऑल इसका आंसर उल्टा हो जाएगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स हो जाएगा, ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। तो नॉट का क्या काम है? नॉट ऑपरेटर जो रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है उसका उल्टा आउटपुट, उसका जस्ट रिवर्स आउटपुट को वो रिटर्न करता है। दिस इज द
way not operator works. तो आज हमने काफी सारा चीज डिस्कस किया, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इन पर रिवीजन करना, एक आईसीसी क्वेश्चन भी आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम और सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और फिर हम लोग एक लेक्चर में we will have a lecture where we will only discuss a good amount of ICC questions on whatever we have covered so far. ठीक है? So let us wind up the class over here. God bless you and take care, all of you.